Hello students, welcome back to Gulel series powered by Praram Science Academy. Here we are starting with another new chapter which is biotechnology and its application. When we talk about biotechnology, इसके बहुत सारे अलग-अलग applications होते हैं as we can see in this diagram. It has its application in energy production, medicines, therapeutics, to production of genetically modified organisms, waste treatment, diagnosis, biopharmaceuticals, agriculture, food science, bioremediation. There are lots of applications that we see for biotechnology, medical sciences as well. Now, when we talk about the applications of biotechnology, there are certain core area of biotechnology as an application, which includes the improved organisms to produce or to purify enzymes which will act as catalyst in further processes in different industries like food industries and waste management industries and etc. It also has an application because of its for providing an optimum conditions to make sure that you have correct processes occurring and product obtained. Downstream processing technologies which will help in purifications of the product. These are the major applications of biotechnology. Uh, Very firstly, we start with the application of biotechnology in agriculture. So you have three major applications in agriculture. सबसे पहला एप्लीकेशन होता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बायो पेस्टिसाइड्स बायो इंसेक्टिसाइड्स बायो हर्बिसाइड्स बनाते हैं ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए. फिर होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज वेयर हम बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे अगेन. ठीक है, सो दैट दी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड एट लार्जर स्केल्स. Post that you have genetically engineered crops which will be produced जहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं क्रॉप्स में ताकि हमको ज्यादा बेहतर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी का ईल्ड मिल सके. ठीक है, तो ये तीन मेजर हो जाते हैं एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के इन एग्रीकल्चर. व्हेन वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड, तो 20th सेंचुरी में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में हुआ था, बट इंडिया में इट वाज बिकॉज ऑफ एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया था. उस ग्रीन रेवोल्यूशन में हम जीन्स को मॉडिफाई करके यानी क्रॉप्स के अंदर जीन्स को मॉडिफाई कर रहे थे ताकि हमको ज्यादा बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी का ईल्ड मिल सके. और वो मॉडिफिकेशन इतना ज्यादा बेहतरीन था कि उसका इस्तेमाल करने की वजह से हमारे यहाँ पे राइस और व्हीट, स्पेसिफिकली राइस और व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो 3 से 7 गुना बढ़ चुका था बेटा. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज to which high yielding varieties were produced, and then there was better management practices of the crops as to what to grow, when to grow, how to grow. Use of agrochemicals, that is biofertilizers, that was done. ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके ये तीन को फॉलो करके there was greater success that was obtained, but then that success was not very much enough and that was not very well coordinated because production of biofertilizers was very expensive or productions of hybrid varieties was very expensive. ठीक है, इट वाज नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्लान. मतलब जो उस समय पे ब्रीडिंग अवेलेबल थे जिस प्रकार से ब्रीडिंग किया जा रहा था, तो इट वाजंट पॉसिबल कि एवरी नाउ एंड देन हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकें. New varieties will require large amount of fertilizers which were then harmful as well as expensive for the farmers. Okay, it was harmful for the fields and expensive for the farmers. So we went ahead further for tissue culture. Tissue culture is where you are growing plants in an artificial controlled environment and having desired characteristic features. So how exactly we go about doing that? So सबसे पहले हम प्लांट के किसी भी पार्ट को तोड़ के उसको आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं, और जो प्लांट पार्ट को हमने तोड़ा उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट. जिसको हम सैंपल की तरह यूज करें उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं. अब इस एक्सप्लांट के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो पूरे प्लांट को जन्म दे सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी. तो क्या प्लांट के सारे पार्ट्स में टोटिपोटेंसी होता है? जी हाँ, प्लांट के सारे ही सेल्स के पास टोटिपोटेंसी होता है. सारे लिविंग सेल्स, हाँ, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक. Every living cells present in plants are totipotent cells, meaning they have the
power, they have the capability to grow into whole new plant. Right? Going slightly more ahead, इस एक्सप्लांट को हमने आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा बेटा। ये न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कार्बन सोर्सेस होंगे, एज वी कैन सी। ये कार्बन सोर्सेस होंगे विच इंक्लूड सुक्रोज। इट आल्सो हैज इनऑर्गेनिक salts, vitamins. It will have different amino acids present in them. It will have growth regulators like auxin and cytokinins also present in it. ठीक है। जब हम प्लांट एक्सप्लांट को इन न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करते हैं, तो जितने भी सेल्स उस एक्सप्लांट में है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और मल्टीप्लाई होता है। जब वो मल्टीप्लाई होता है तब एक गोला बनाता है ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास। इट फॉर्म्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ cells to what we identify as callus. When you add auxin it forms root, and when you add cytokinin it forms shoot. ठीक है। और इसी प्रकार से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं एट वन सेम टाइम, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ टेक्निक विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रॉप्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है। एंड जनरली टमाटोज, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा को ग्रो करने के लिए हम माइक्रो प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो अगर किसी प्लांट के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा, तो जनरली उसके अपाइकल मेरिस्टम्स जो होते हैं या एक्सिलरी मेरिस्टम्स होते हैं उनमें वायरस ग्रो नहीं कर पाते, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं एज एक्स प्लांट एंड ग्रो एन एंटायर प्लांट, सो दैट द न्यू प्लांट विच इज ऑब्टेन्ड इज वायरस फ्री प्लांट। So this is how tissue culture can also be used for obtaining a healthy plant or disease-free plant. Banana, sugarcane, potato are very commonly infected by viruses, and thus you can obtain virus-free plants in them with this particular technique. Apart from that, scientists have also been successful in undergoing somatic hybridization, which is another application of PTC only. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा कि हम दो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करने वाले प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को ले लेते हैं और उन प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? वो पूरा सेल होगा लेकिन बिना सेल वॉल का। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो इसको हम फ्यूज कर देते हैं। जब हम इसको फ्यूज करते हैं, वी यूज अ फ्यूजिंग एजेंट which is called as PEG, that is polyethylene glycol. We use polyethylene glycol. दिस इज यूज्ड एज फ्यूजिंग एजेंट, यानी ग्लू जैसा काम करता है जो दो सेल्स को जोड़ने में हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे हमने प्लांट के बॉडी सेल्स का इस्तेमाल करके उनको जोड़ा है, यू कॉल दिस टेक्निक टू बी एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल दैट वी कैन थिंक अप फॉर दिस इज टमाटो एंड पोटैटो के सेल्स व्हिच वर फ्यूज्ड टू गिव अस टोमेटो, जो बाहर से दिखने में आलू जैसा था लेकिन काटा तो अंदर टमाटर जैसा था। सो दैट्स टोमेटो, बट इसको हम मार्केट में कभी नहीं ला पाए थे because of the different ethical, legal, and social issues. It couldn't come into the market. जेनेटिक इंजीनियरिंग जब क्रॉप्स में जनरली किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। या तो हम कोई जीन को ऐड करते हैं या तो किसी जीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीन एडिशन वाले में हमारे पास एग्जांपल है अबाउट गोल्डन राइस, जहाँ पे अमेरिका में जो सिटीजन्स थे, वहाँ के अमेरिकन सिटीजन्स या क्राउड था, पॉपुलेशन था, जो पुअर पॉपुलेशन था दैट वाज डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए। उनके विटामिन ए काफी कम क्वांटिटी में एनी बॉडी को चाहिए और उसके डेफिशिएंसी की वजह से लोग काफी मर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक सेट ऑफ साइंटिस्ट को बुलाया और बोला कि चलो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट अ वे हाउ फूड में ही उतना न्यूट्रिशन दिया जा सके कि कोई विटामिन ए के डेफिशिएंसी से तो ना मरे एटलीस्ट। सो साइंटिस्ट ने बासमती राइस को सिलेक्ट किया। उस बासमती राइस के अंदर विटामिन ए ऑलरेडी बनाया जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब हम उसको हार्वेस्ट करते थे, यानी क्रॉप को जब हम हार्वेस्ट करेंगे, प्लांट में से निकालेंगे, तो उसके अंदर का विटामिन ए मर जाता था। जो एंजाइम्स विटामिन ए बनाते थे वो एंजाइम्स मर जाते थे। तो देन व्हाट द साइंटिस्ट डू इज दे टुक एंजाइम्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट। ठीक है। उन्होंने दो अलग अलग प्लांट से एंजाइम्स लिए और उन एंजाइम्स को
उन एंजाइम्स के जीन बेसिकली लिए और उन एंजाइम्स के जीन्स को उन्होंने इसके अंदर डाल दिया। अब वो एंजाइम्स के जीन्स उन्होंने किस में से लिए थे? तो वो एंजाइम्स के जीन्स उन्होंने लिए थे एक बैक्टीरिया में से, विच इज अरवीनिया स्पीशीज, जो एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने लिया था डैफोडिल्स में से, ठीक है। तो दो एंजाइम्स डैफोडिल्स में से लिए थे और एक एंजाइम अरवीनिया से लिया था। और उन एंजाइम्स के जीन्स को, उन एंजाइम के जीन्स को ओराइजा सटाइवा, विच इज राइस, गोल्डन राइस के वैरायटी में डाला था। तो जितना ज्यादा वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर पा रहा था, उतना ज्यादा उसको गोल्डन राइस और गोल्डन कलर मिल रहा था। इस वजह से, मतलब येलो कलर मिल रहा था, इस वजह से उस राइस को आज हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस का इस्तेमाल किया गया था एज वेक्टर, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन दैट वी कैन थिंक अप इज अबाउट बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है, विच इज अगेन अ सॉइल बैक्टीरिया, जिसके पास काबिलियत होती है कि वो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो एक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन है बेटा। और क्योंकि ये एक प्रोटीन बॉडी के अंदर बनाया जाता है, इसलिए हम इसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ये एंडोटॉक्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटॉक्सिन बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो आइडली इट इज एन इनएक्टिव प्रीकर्सर दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बैक्टीरिया, ठीक है। whenever an insect ingest this particular inactive protein, तो वो प्रोटीन जो होता है उसके गट के अंदर यानी इंटेस्टाइन में अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलने की वजह से वो प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने की वजह से एपिथेलियल टिश्यूज जो रहते हैं उसके इंटेस्टाइन के, उनमें छेद कर देता है। और इंटेस्टाइन में छेद हो गया यानी कि उसको खाना नहीं मिल पा रहा है और वो मर जाता है उस वजह से। तो इस वजह से इसको टॉक्सिन कहा गया है, क्योंकि वो मार रहा है इंसेक्ट को। और क्योंकि बैसिलस thuringiensis से ये टॉक्सिन मिला है, इसलिए इसको बीटी टॉक्सिन कहा गया है, ठीक है। तो पहले इस बीटी टॉक्सिन को किस प्रकार इस्तेमाल किया गया था? तो पहले इस बीटी टॉक्सिन को प्रोडक्शन करने के लिए जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, उसके स्पोर्स बना दिए जाते थे। और स्पोर्स बना बना के उसको पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करते थे। बट ना ये प्रोसीजर बहुत बड़ा हो जाता था कि कब इंसेक्ट आएगा, उस स्पोर्स को खाएगा, स्पोर्स जर्मिनेट होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन एक्टिवेट होगा, काफी लंबा प्रोसीजर था। तब तक तो वो इंसेक्ट उसको हार्म कर चुका है प्लांट, सो उसका ऑल्टरनेटिव सोचा गया, जहाँ पे फिर अब इस प्रोटीन को प्योरीफाई करके स्प्रे करते थे। तो प्रोटीन को स्प्रे करने की वजह से क्या होता है, खाली 15% ही प्रोटीन उस प्लांट पे जाता था, बाकी प्रोटीन सॉइल में जाता था तो सॉइल इंसेक्ट मरते थे, हवा में जाता था तो हवा के इंसेक्ट्स मर रहे थे। तो अगेन इट वॉजंट वेरी एफिशिएंट। फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन, उसके जीन्स निकाले जिसको हम आज कहते हैं क्राई जीन। और उन जीन्स को उन्होंने प्लांट के अंदर डायरेक्टली इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया, जिससे आज हम बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोबैको, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन करके भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो क्राई जीन या क्राई प्रोटीन है, वो 3 अलग-अलग क्लास ऑफ बैक इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन आता है हमको कि क्या बीटी टॉक्सिन सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इस पे हमारा आंसर नो हो जाएगा बेटा। ये सारे इंसेक्ट के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए ही है। वो इंसेक्ट जो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा क्लास से बिलोंग करता है, सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होते हैं, सबके लिए नहीं होते, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि क्राइजीन जब हमने इस्तेमाल किया, तो अलग अलग प्रकार के क्राइजीन का इस्तेमाल किया। तो वी यूज्ड क्राई 1 AC and cry 2 AB. These two cryogens were used for cotton to get them resistant from bollworm infection, and cry 1 AB was used to get maize protected from corn borers. All right, remember this thing, it's important for NEET examination. Next आता है antisense RNA, which is RNA ion, that is RNA silencer. अब यहाँ पे हम बेसिकली कर रहे हैं नॉकआउट जीन या इनएक्टिवेशन ऑफ जीन या जीन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है?
तो समझने का कोशिश करो। एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोई डिगाइनी इनकॉग्निटिया। ये पर्टिकुलर नेमाटोड जो है यानी एस्कैलमिंथस जो है, वो टोबैको के रूट्स को इन्फेक्शन देता था, जिस वजह से रूट नॉट इन्फेक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लांट के रूट्स में, जहाँ पे वो रूट के सेल्स जो है वो काफी डैमेज हो जाते थे और बड़े बड़े से ब्लॉचेस हो जाते थे, जिस वजह से क्रॉप का ईल्ड जो है वो कम हो रहा था। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे था? तो मेलाइडिकॉग्नी इनकॉग्निटिया कुछ प्रकार का प्रोटीन जो था वो इन्फेक्शन के तौर पे उस प्लांट के अंदर छोड़ देता था और फिर उस प्लांट को खा लेता था। अब सीन क्या होता था यहाँ पे? हमने क्या किया? आरएनए साइलेंसिंग का मार्ग अपनाया, जहां पे नॉर्मल कंडीशन में, चलो आई शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन इंसेक्ट, इस इंसेक्ट के पास ऑब्वियस सी बात है कि दो डीएनए रहेंगे मॉलिक्यूल्स, एक टेम्पलेट डीएनए, एक नॉन टेम्पलेट डीएनए। जो टेम्पलेट डीएनए है उसमें से जो टेम्पलेट डीएनए है उसमें से एक एमआरएनए बनाया जाएगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब ये प्रोटीन क्या हो जाता है? दिस प्रोटीन गोes inside a particular root cells and tends to infect it. Correct? It used to infect this root cell. Now to avoid this, what did we do is हमने इस पर्टिकुलर डीएनए को आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करके उनको वेक्टर्स में डाल दिया। तो एक डीएनए एक वेक्टर में, दूसरा डीएनए दूसरा वेक्टर, और इनको हमने एंटर करवाया प्लांट सेल्स के अंदर। सो दिस वाज नथिंग बट प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स में हमारे पास क्या हो गए? दो प्रकार के प्लाज्मिड, जिसमें एक में नॉन टेम्पलेट डीएनए है और एक में टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए से टेम्पलेट आरएनए बनेगा, नॉन टेम्पलेट डीएनए से नॉन टेम्पलेट आरएनए बनेगा, और ये दोनों ही एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर उस आरएनए का प्रोटीन तो बना ही नहीं, तो द प्लांट इज सेफ। नाउ when this particular insect is trying to eat this particular plant leaf, जब ये इंसेक्ट नहीं, सॉरी, नेमाटोड, जब ये नेमाटोड इस प्लांट के सेल्स को खाना चाहता है, तो इसके अंदर का ओके, चलो, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर का ये वाला जो पार्ट है वो इसके बॉडी में चला जाएगा बेटा। तो जब इसके बॉडी में जाएगा तो हमारे पास एमआरएनए टूटे टूटे से मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से। नॉन टेम्पलेट डीएनए के आरएनए भी रहेंगे और टेम्पलेट डीएनए के आरएनए भी रहेंगे, कुछ इस प्रकार से, बराबर। और उसका खुद का जो डीएनए है, उस डीएनए से जो एमआरएनए बनना चाहिए वो तो एमआरएनए बन ही रहा है। तो ये वाले जो है वो भी जा जाके इसको चिपक जाएंगे। तो अब इंसेक्ट जो है वो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, यानी जो मेलाइड गॉग्नी इनकॉग्निटिया है वो प्रोटीन तो बना ही नहीं पाएगा। तो वो टोबैको में इन्फेक्शन नहीं फैला पा रहा है, तो टोबैको को खा नहीं पा रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो मर जाएगा। तो अल्टीमेटली जब पता है कि उसको खाने से मैं खुद मर रहा हूं, तो वो खाना बंद कर देगा उसको। समझ पा रहे हैं? एंड दैट्स हाउ यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल एमआरएनए है, जो टेम्पलेट डीएनए से एमआरएनए है, उसके ऊपर नॉन टेम्पलेट डीएनए का भी आरएनए चिपका दिया गया है। तो इस वाले आरएनए को यू कॉल इट एज आरएनए इंटरफेरेंस बिकॉज इट इंटरफेयर्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए। I can also call this as RNA silencing because it is muting वो जो टेम्पलेट, जो एक्चुअल आरएनए है उसके एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है
इस वजह से आई कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई इट टू बी एस आरएनए साइलेंसिंग. ठीक है. I hope the concept is clear up till here. What is RNA silencing and what is RNA interference? ठीक है. Now going ahead. Okay. Now going ahead further to understand about all of these next characteristics, next application in agriculture is flavor saver tomato. जो भी बेटा जी इसी प्रकार के एप्लीकेशंस का शिकार है, जहाँ पे जनरली टमाटर जो होता है इट गेट्स डीनेचर्ड बिकॉज ऑफ टू रीजंस. टमाटर बिगड़ जाता है दो रीजन से. एक ईथिलीन है जो उसको राइपनिंग करवा देता है, और दूसरा एंजाइम पॉलीकैलेक्टोयूरोनेज करके होता है जो जनरली उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है, जिस वजह से सेल वॉल को डिग्रेड करने की वजह से जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है और सड़ जाता है. अब हम ईथिलीन का कुछ नहीं कर सकते, हम फ्रिज में रख सकते हैं उसको, लेकिन हम पॉलीकैरेक्ट ह्यूरोनेस को एक काम कर सकते हैं जहां पे हम एंटीसेंस आरएनए डाल के पॉलीकैरेक्ट ह्यूरोनेस एंजाइम बनाना ही बंद कर देंगे. जब हम एंजाइम बनाना ही बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली फ्रूट का डिग्रेडेशन प्रोसेस डिले हो जाता है. ठीक है. जब हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा किया तब हमने ये जाना कि ये कॉन्सेप्ट करने के बावजूद, even after doing this, there was no change in the flavor, there was no change in the taste and texture, there was no change in the image, image नहीं मतलब color of the tomatoes as it is था, जिस वजह से इसका नाम आ गया फ्लेवर सेवर टमाटो. दिस इज द स्पेलिंग, डू नॉट चेंज द स्पेलिंग, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट. So these are the applications that we have for agriculture as far as biotechnology is concerned.